जब तक ये शूट पर पहुंची नहीं तब तक मुझे यकीन नहीं था कि ये वो नरगिस फाकरी की बात हो रही है। कोई ऐसी फिल्म आई थी दिमाग में कि यार ये वाली करने के बाद अब तो बस बॉस अपन ही भगवान है भाई। बहुत सारी चीजें वैसे इंडिया के बाहर चली गई हैं, कोहिनूर चला गया, सारी चीजें नहीं जानी चाहिए, कुछ तो वापस आनी चाहिए। नरगिस तो यही रहनी चाहिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे, पता नहीं क्यों लिखा था उन्होंने, ये नरगिस ऐसी जिसको मैंने कभी रोते हुए देखा ही नहीं और ये तो नूर से भरी है, नूरानी चेहरा है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, शिव शास्त्री बेलबुआ के बारे में इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है। अनुपम खेर और नीना जी इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं और उनको भगाने में या उनको कहें कि विदेश से इस देश तक लाने में दो बेहद इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, जिसमें से एक हैं सिनेमन सिंह। हनी सिंह के भैया भैया ये कुछ नहीं है, लेकिन ये है सिनेमन सिंह। और दूसरी जो हैं वो अपने बारे में खुद बताएंगी। चलिए, ये तो उनके किरदार हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ, हम बात कर रहे हैं शारिब हाशमी जी के बारे में और नरगिस फाकरी जी के बारे में जो हमारे साथ हैं, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान जो कैप्टन ऑफ द शिप हैं, इस पूरी फिल्म को जो चला रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हमारे साथ हैं, अजयन जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका न्यूज़ 18 पे। पहले तो ये बताइए, ये कौन मदद कर रहा है, किसने प्लानिंग करी है कि इन दो बुजुर्गों की आप मदद करेंगे? ये पहले इसका जवाब ये देंगे। दिस वाज माय ग्रैंड प्लान। कहानी मैंने लिखा था ओरिजिनली, सो आई थिंक इट वाज माय ग्रैंड प्लान। दिस फिल्म इज अबाउट all age groups. It's a family fun film, and I was just talking to Sharib about it too. It has if you really look at it, एक छोटा सा कुत्ता है which the kids would love, and then there is teenage grandsons of Shastri which is there, and then we have youngsters like Sharif and beautiful Loke, Nargis. So we have the whole spectrum of all the people in this film. So it's a rainbow in some sense of emotions, of age and all that. Many people are saying, Nargis, it's your comeback. I'm not saying this because I know you are working so hard in New York or in Hollywood especially. But 3 साल बाद, after 3 years, you are choosing a film where hero is Anupam Kher, heroine is Neena Gupta. So what makes you choose this film? That's actually a good question, and thank you for saying that, because COVID happened, and that's why I wasn't back. I had a ticket actually, and I had to cancel it. Anyhow, why? आपने एक सवाल नहीं पूछा, बॉयफ्रेंड शारिब हाशमी। ये सर मैं आपके पास आ रही हूँ, ये आपके लिए मोमेंट है। That is the reason. That is the real reason. Yes, actually, I play a young lady named Sia who. My honey is my cinnamon sing. That's what I wanted to say. Awesome. But besides that, I really loved the story because I felt like it was very real, original, and it obviously was taking place in my home country and very close to New York, so that was amazing. And another part was that I felt that this film has a lot of layers, and that I can see that anyone could go and watch this. You can take your children to watch it, grandma, grandpa, everybody. Even your dogs. Even your dogs. Even your dogs. Awesome. Exactly. Awesome. And I think, getting to do something that's realistic and where it was shot. Usually we see films in Hollywood as well, Hindi films. We shoot in like New York City or Miami or Los Angeles, like these big places. Yeah, and this was in a small town. American Gal, yeah, exactly. And I thought that was cool. टूरिस्टी प्लेसेस ही दिखाई देती हैं, मतलब that we've all seen. Yeah, we only see like the big cities and like really fancy, and we don't get to see real America. So I thought that was very exciting, being an American. So yeah, actually, same for the India. जब भी बाहर आप देखते हो तो गरीबी, मतलब आपको पता होगा. I mean, India is not गरीबी ना. Agree. There is a stereotype of every country, and everybody wants it. मेरे भी सपने में जब भी पेरिस आता है तो एफिल टावर ही आता है, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं पाता। शारिब, जैसा वो सवाल आया था ना, छिड़ रहा था, तो अब मैं आपके पास आती हूँ। कौन सी वाली बटरफ्लाई उड़ी जब पता चला सारी उड़ गई नरगिस फाकरी? मतलब आप सोचिए, आई मीन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे पहले आप मिशन मजनू में हैं, बंदा अकेला ही मर जा रहा है। उससे पहले फैमिली मैन, सबकी फैमिली है, बंदे की सिर्फ फोमो करवाने में लगे पड़े हैं। बट नाउ पहली बार तो हीरोइन मिली, आई मीन नॉट पहली बार बट स्टिल, वो भी नरगिस फाकरी। आई मीन
कौन कौन सी तितलियां उड़ी, क्या क्या हुआ? Too funny. मैं तो मतलब मैं रियली मतलब जब तक ये शूट पर पहुंची नहीं तब तक मुझे यकीन नहीं था कि ये वो सी नरगिस फाकरी की बात हो रही है। हाँ, पता नहीं बाद में ले आए हाँ, कुछ। इन्होंने मुझे फ़ोन पर बात की थी कि शारिब वी आर ट्राइंग फॉर नरगिस ऑपोजिट यू। नरगिस कौन? आर यू टॉकिंग अबाउट सम मिस वर्गिस? क्योंकि ये तो मलयाली है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये कोई वहाँ पे कोई होंगी मिस वर्गिस। फिर उन्होंने बोला नहीं, नरगिस 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 फाकरी। सच में वही वाली? तो मतलब सो था। हाँ, और बहुत वो हुआ और मुझे लगा भी कि ये मतलब बड़ी मतलब वो होंगी बट ये बबल आई मीन, हाँ आप कि मतलब काफी एटीट्यूड मारेंगी हाँ, और वही। थ्रो करेंगी मतलब एकदम। हुआ क्या असल में? बट ये तो मतलब शी इज सच अ स्वीट हार्ट, मतलब शी इज अ डार्लिंग टू वर्क विद एंड यही प्रोमो लगने वाला है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या आई इस फिल्म को शूट करते हुए, क्योंकि दो यंग लोग हैं जिनको आप मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन दो इतने सीनियर लोग हैं जिनको अपना काम अच्छे से आता है, तो इससे फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है क्योंकि उनको बहुत अच्छे से आता है तो आप ज़्यादा सिखा भी नहीं सकते। तो वो as I told you, मैं जब right before the night of the shoot जब मैं सो रहा था, that's when I realized यार कल उठ के I have to direct अनुपम खेर and नीना गुप्ता। तब तक I was like very chill, अरे यार कल shoot हो रहा है, and that's when I realized it. But the most amazing thing for me working with them is that see you just have to convince them. That what the scene is about. They are not just actors, they are very smart individuals, but all of them. So once you convince them that this is the scene, and this film is not very melodramatic, there is nothing out of the thing. If anything, Cinnamon's character it will be slightly the character which you would think, and I always keep saying this, Sharif ne itna amazingly wo character kiya hai, because I didn't want the character to be very caricaturish, because that character can go into that zone. And Sharif had played it on the right note. So, and working with all of them. So Sharif, I initially came and said, Sharif, we have to keep it here. And Sharif was like completely cool. That's exactly what I thought too. So automatically I had a sync with these actors, which really helped through the process. चलिए, बहुत सारा सच तो डायरेक्टर साहब ने नहीं बताया कि कितनी मुश्किल दी है अनुपम खेर जी और नीना जी ने। इतने सीनियर एक्टर्स हैं, मुश्किल दे भी तो मज़ा ही आएगा उनके साथ। लेकिन एक इस फिल्म की थीम है कि भाई जो शास्त्री जी हैं वो किसी से मिलना चाहते हैं, रॉकी बेल्बुआ से मिलना चाहते हैं, और अक्सर हम सब की लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान होता है जिसको आप चाहते हो। आप तीनों के लिए एनी आइडियल पर्सन जिसको भाई अभी ये रह गया है, इससे मिलना है, एक बार मिलना है लाइफ में। कमल हासन साहब से मिलना है, ए आर रहमान साहब से मिलना है, ये दो फिलहाल काफी ये तो हो जाएंगे। Yeah. बहुत जल्दी हो जाएंगे। हो जाए। For me it's Obama now. वो भी आपके घर के पास ही है, वो भी मिल जाएंगे। Obama for me. Obama And Nargis? Oprah Winfrey. Yeah. So have you tried? No, I haven't tried. I haven't tried to meet them. No. शारिब, आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी, इतने टाइम में I mean, जैसे हमने अभी कहा कि फिल्मिस्तान हर किसी ने एक चेहरा देखा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, बहुत सारी फिल्में ऐसी आई, आज शारिब हाशमी को लोग नाम से जानते हैं, किरदारों से ऊपर। ये जो सफ़र था, ये ऐसे ही प्लान किया था और यू हैव समथिंग एल्स इन योर माइंड, या आपको लगा था यार ये कोई ऐसी फिल्म आई थी दिमाग में कि यार ये वाली करने के बाद अब तो बस बॉस अपनिची भगवान है? वो ही हुआ था, मुझे लगा था कि फिल्मिस्तान के बाद ऐसा होगा। अच्छा। कि भाई अब तो अपना गेम सेट हो गया लाइफ में, अभी कोई आगे अपने नहीं, कोई पीछे नहीं। हाँ। अपनी मस्त लाइफ होने वाली है। बट वैसा हुआ नहीं। मुझे जिस दिन फिल्मिस्तान का स्क्रीनिंग हुआ, एक क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्री स्क्रीनिंग थी एक, तो उसमें निखिल अडवाणी साहब ने वो फिल्म देखी थी और उन्होंने ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू साइन मी बिफोर द फिल्म्स रिलीज, एंड ही साइंड मी इन द मेन लीड फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म, जो अनफॉर्चुनेटली इट गॉट शेल्व्ड। बट उन्होंने वो मुझ पर भरोसा दिखाया और अब इंशाल्लाह हम इस साल शायद कुछ करने वाले हैं साथ में। बट तो मुझे लगा था कि यार अब तो निखिल सर हैं और भी कुछ बड़ी बड़ी फिल्में और मैं कुछ कर रहा था। बट unfortunately, I don't know, things were not falling into place. The films which I was really looking forward to, they got shelved midway, and some of them which got made, which got ready, they never saw the light of the day. So and time was passing by, and I was getting frustrated
तो वो टाइम जो था वो थोड़ा सा मतलब आई नीडेड सम you know encouragement and some good words from my friends and my family, and thankfully I really had very supportive friends, and my wife is a big क्या कहेंगे पिलर है मेरी लाइफ में वो, तो उनके सपोर्ट से मैं वो कर पाया। फैमिली मैन से चीज़ें फिर बदली, फिर उसके बाद अपन अभी तब से मैं मतलब जब से फैमिली मैन आया है 19 से, तब से मतलब आई एम इन अ वेरी happy space, and I can't thank Raj and DK enough for giving me JK and yeah. मैंने जैसा कैमरे के पीछे भी कहा, मैं कैमरे के आगे भी कहूँगी कि इतनी सारी आपकी सक्सेस फिल्मों के बारे में आपसे बात कर देंगे, लेकिन धाकड़ में जिस तरह का किरदार आपने किया, दरअसल उस पूरी फिल्म में कहते हैं ना कि ब्रीद आप जहाँ कर सकते हैं, इट्स योर कैरेक्टर। अरे थैंक यू सो मच। नरगिस, शारिब ने अभी मेंशन किया, हर किसी के साथ, हम सब के साथ ये फेजेस हुए जब बहुत कुछ, खास तौर पे कोविड के दौरान, यू फील सो डिप्रेस्ड, सो कि अब बस कैसे ख़त्म होगा ये दौर। I wasn't depressed. No, now we all are charged up. Yeah, वैसे COVID में even I wasn't depressed in COVID. Yeah. Wow. I was very happy. Me too. Yeah, really. So I'm very good on my own, and I But love in nature. So I went out hiking. I rode my bicycle. I drove to the beach. Wow. I cooked for the homeless people. So I made a lot of food, and I would pack it every day and give like food to people outside. So I was always busy. So I never felt bored. But I did miss India. That I will say. She missed India and we miss you as well. इसीलिए बार-बार शायद बहुत सारे लोग आपसे कह रहे हैं come back, but we love you. After 3 years, you are coming with Shiv Shastri ji. So thank you for the Shastri ji, and thank you Ajayan ji to taking her back. भाई बहुत सारी चीज़ें वैसे इंडिया के बाहर चली गई हैं, कोहिनूर चला गया, सारी चीज़ें नहीं जानी चाहिए, कुछ तो वापस आनी चाहिए। नरगिस तो यही रहनी चाहिए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे, पता नहीं क्यों लिखा था उन्होंने कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। ये नरगिस ऐसी जिसको मैंने कभी रोते हुए देखा ही नहीं, और ये तो नूर से भरी है, नूरानी चेहरा है। तो ये थी फिल्म शिव शास्त्री बेलबुआ की स्टारकास्ट हमारे साथ, जिन्होंने काफ़ी मज़ेदार और चटपटी बातें हमारे साथ की। तो देखिए यहाँ इतना मज़ा आया, तो सोचिए थिएटर्स में कितना आएगा, और वो भी एक ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ जिसको गढ़ा गया है हम सब के लिए। शायद ये कहानी सिर्फ बुज़ुर्गों की नहीं है, सिर्फ जवानों की नहीं है, ये कहानी उस होप के बारे में है जो हम सबको शायद ज़िंदगी में चाहिए। देखते हैं ये होप कितनी सिनेमा तक, दर्शकों तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 बिल्कुल पहुंचेगी, 10 फरवरी को पहुंचेगी सिनेमा हॉल्स में। 10 फरवरी को ये उम्मीद पहुंचेगी आप तक सिनेमा हॉल्स में। सो प्लीज गो एंड वॉच शिव शास्त्री। Take your entire family. Yeah. Everybody can go. परिवार के साथ। Yes, परिवार के साथ, पूरा परिवार के साथ जाएं। Yes, और please. Dog also. और जब तक 10 तारीख तक, जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होती है, तब तक आप न्यूज़ 18 हिंदी देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you. so much.